This conference will now be recorded. Okay, welcome you all to the training session on steel wire manufacturing technology. This is the day 4 of week 2, and we are on to wire rod manufacturing. Till now, what we have seen, we have learnt about the reheating furnace for the billet. So, why the reheating is required? To make it suitable for further hot rolling process for plastic deformation. And in reheating furnaces, we saw various types of furnaces. हमने कुछ वीडियो भी देखे थे wherein there were a walking beam furnace and pusher type furnaces की videos थे. And we have also seen various types of components that are there in the rolling mill. Okay. So now today what we are going to see, we will see some process equipment like rollers, and then we will see the Stellmore cooling process. इसमें we will little bit discuss about the iron carbon diagram also and time temperature transformation diagram also, that is TTT diagram, because in the Stellmore process it is basically for achieving the required structure, achieving the required properties. So we have to discuss a little bit about the iron carbon phase diagram and TTT diagram also. Also, we will have a little bit discussion on the scale formation, because scale is very important. जब हम mechanically descaling करते हैं, their scale requirement is different. For chemical pickling, जो next process है, there the scale requirement is different. So how that scale is controlled, that also we will discuss in brief. So cause of confidentiality, as I am telling you in every session, please keep the training material, videos with you. Do not share it on any of the professional or social platform. This diagram I am keeping every time. So we are on the latter stage now. ये हो गया है, इसके आगे की प्रोसेस. तो till now we have studied iron ore से प्राइमरी आयरन कैसे बनाने का, उसके बाद में how to make the steel out of that one after refining, and how to make the continuous casting. ये पूरा हमारा हो चुका है, and now we are on to processing the output from the continuous casting mill, that is billet. वायर रॉड का प्रोसेस कल भी हमने डिस्कस किया था, and we have seen the videos also. What it will have basically a reheating furnace, or in some cases if the output is coming directly from the continuous casting, then no reheating is required. It can directly fed to the rolling mill. After that, there is in between, there is a high pressure water jets to remove the scale. यहाँ पे दिखाया नहीं उन्होंने, but there is a high pressure water jets to remove the scale from the surface of the billet. Next to that, there are pull rollers basically to take the billet inside, and then there is a toggle shear to remove the ends of the billet. Then the mill is basically divided into 3 sections. One is roughing mill, intermediate mill, okay, and then there is a finishing mill, or sometimes it is called reducing and sizing mill also, RSM also they call it. And this NT means basically no twist block. जो ये रोल्स लगे रहते हैं रफिंग में और इधर, it is basically horizontal and vertical, because you have to have the uniform say deformation. So that's why the rolls are basically such that one roll is vertical, one roller set is vertical, another is horizontal, then vertical, horizontal, like that one. And पहले जब ये vertical horizontal arrangement नहीं था, तो क्या करना पड़ता था? To maintain that ovality, the whole wire rod needs to be twisted, है ना? So उसको twist करके उसकी direction 90 degree change की जाती थी. But now, as we have that vertical horizontal rollers, and जो finishing size जो रहती है, उसमें the rollers are at 45 degree, 45, 45, 45, 45.
उसके कारण उनको चारों तरफ से, चारों प्लेन में रिडक्शन होता है, उसका डिफॉर्मेशन होता है, एंड यू विल गेट अ वेरी गुड साइज कंट्रोल, वेरी गुड ओवेलिटी कंट्रोल बेसिकली इन दी फिनिश प्रोडक्ट. ऑलमोस्ट यहाँ तक 25 ब्लॉक दिखाए, बट डिपेंडिंग ऑन द प्रोडक्ट रेंज इट कैन बी अप टू 30 ब्लॉक्स ऑल्सो. जो हमने कल एक मील देखी थी JSPL की, इन दैट देर आर 30 ब्लॉक्स टोटल, 13 stands are there. Then to control the temperature, water boxes will be there, pinch rollers will be there, and then there is a laying head. अभी ये डायग्राम तो ऐसी दिखाई है, बट नॉर्मली इतना चेंज नहीं रहता है. समवेयर बिकॉज ऑफ द constraint of the space, because this complete structure right from the reheating furnace to the end of the mill will be almost 600 to 700 meters long. Okay, so if somebody don't have the space that long, but width wise they have, then what we have, they will have the turning here from this to this. There are certain mills वहां पे टर्निंग रहता है, तो वापस इस डायरेक्शन में शुरू हो जाता है वो. So it is basically because of that one. Otherwise it continue चलते रहता है. And here also in the picture they have shown, because आप अगर continuous बनाने जाओगे तो in one screen you cannot accommodate also. That's why उन्होंने पूरा ऐसे दिखाया हुआ है. बट नॉर्मली आपका कूलिंग कन्वेयर इस यहाँ से यहाँ कभी नहीं आएगा, है ना. कूलिंग कन्वेयर लेइंग होने के बाद स्ट्रेट ही जाएगा. Here the picture they have put only because of the constraint, space constraint here. How to show that one? That's why. And here you can see it's a Stellmore conveyor when it is called controlled cooling. So it is carried out on the Stellmore conveyor. They call it Stellmore process. So what is there? We have a air blown from the bottom side. Air means natural air रहती है, normal air. Sir? Yeah. Sir, what is the meaning of Stellmore? So where did that come, sir? Stellmore basically the person who have invented that one. Okay, sir. Oh. And after that, the control, it is called control cooling also. And now there are so many variations has come also in this particular Stellmore process or control cooling of the wire rod process. As I told you earlier, when this process was not there, when this Stellmore conveyor was not there, the property of the wire rod was not up to the mark, because it is having, because of the slow cooling. When we go to the time temperature transformation diagram, you will see that if the cooling rate is lower, we will get coarse perlite, and coarse perlite has the lesser strength compared to fine perlitic structure. And because of the coarse grain structure, it was not also possible to draw it to the greater degree of reduction compared to the fine perlitic structure. So fine perlitic structure, which is also our aim to get it in the patenting furnace in the wire mill. है ना, वायर मिल के पहले जो हमारी वायर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में जो पेटेंटिंग फर्नेस रहती है, the aim of that furnace is basically to get the fine perlitic structure, because fine perlitic structure are very good at further processing or further metal deformation during the wire drawing. So जब TTT diagram देखेंगे, so I will give you some idea. बड़ा मेजर में हम डिस्कस करेंगे ड्यूरिंग द पेटेंटिंग फर्नेस. ये भी जैसे JSPL का एक प्रोसेस है ना, वन ऑफ द अनदर दिस वन स्कीमेटिक. लैटरल रिफाइनिंग के बाद कंटिन्यूअस कास्टिंग, बिलेट आया, बिलेट के बाद बिलेट रिकंडीशनिंग. व्हाई बिलेट रिकंडीशनिंग इज रिक्वायर्ड? टू रिमूव एनी सरफेस इम्परफेक्शंस जो रहते हैं ना सरफेस में, वो निकालने के लिए, स्केल वगैरह होता है उसको रिमूव करने के लिए. एंड देन इट इज रिएटेड इन द फर्नेस. डिस्केलर है, हाई प्रेशर डिस्केलर.
यहाँ पर to remove the scale, then breakdown mill, intermediate mill, pre-finishing mill, and then no twist mill, and then called reducing and sizing mill. Reducing and sizing mill is basically reduce करेंगे, size करेंगे, मीन्स साइज को कंट्रोल करेंगे, यहाँ पर ओवेलिटी को कंट्रोल करेंगे. Then there is the water cooling and then laying head. Why water cooling is there? Particular water cooling is there to, before the laying on the Stellmore conveyor, you have to lay it at particular temperature. What that temperature will be, we will study in the next slide, next to next slide. But for particular temperature पे उसको रखेंगे, then only we will get the required structure. अगर बहुत ज्यादा टेम्परेचर पे हमने उसको ले किया, there are disadvantages. बहुत कम पे अगर ले करेंगे, also there are disadvantages. So we have to lay at that particular temperature. So it is one of the major process parameters. Like in the rating furnace, the temperature of the billet plays a major role. टेम्परेचर जो रहता है अपना हमारे बिलेट का, उसका टेम्परेचर कितना रखोगे उसके ऊपर आगे की बहुत सारी प्रॉपर्टीज डिपेंड करती है. सेम वे से कन्वेयर पे जब जाएगा, कूलिंग कन्वेयर पे, तब जो टेम्परेचर, किस टेम्परेचर पे हम उसको ले करते हैं, दैट आल्सो प्लेज अ मेजर रोल. स्टेलमोर कन्वेयर के बाद फिर इसमें हम जो कलेक्टिंग फॉर्मर में ले लेंगे उसको, एंड कन्वेयर के इससे ये कॉम्पैक्टिंग होके फिर शिपिंग में चला जाएगा. दिस वाज शोन इन दी यस्टरडेज. दैट वीडियो फिल्म व्हाट वी सॉ ऑफ JSPL, उसमें भी सब दिखाया था. वंस अगेन टू गो थ्रू क्विकली, जो स्पीड ऑफ द ड्राइंग है, स्पीड ऑफ द रोलिंग है, तो फाइनल स्पीड ऑफ द रोलिंग इज एज हाई एज 110 मीटर पर सेकंड. हमने कल कैलकुलेशन करके निकाला था टू गेट दिस 2.48 kg. एक कॉइल का वेट 2.48 kg है. कुछ मिल में 2 टन का रहता है, कुछ में 1 टन का ही रहता है, 1.5 टन का रहता है बहुत सारे मिल में. इट ऑल डिपेंड्स ऑन दी वो बिलेट की कैपेसिटी, आप कितना हैंडल कर सकते हो रेटिंग फर्नेस में, एंड कितना आप हैंडल कर सकते हो इन द रोलिंग मिल. फिर हमने कैलकुलेट किया था कि हाउ मच टाइम इट विल टेक. तो ऑलमोस्ट 1 मिनट में 1.15 या 1.13 ऐसा कुछ तो भी कैलकुलेशन में आया था कि दैट मच टन कैन बी प्रोड्यूस्ड इन 1 मिनट एट दिस हाई स्पीड. एंड वहां पे जो कन्वेयर कूलिंग है, स्टेलमोर कन्वेयर कूलिंग विद द हुड ऑल्सो. नाउ कमिंग टू द रोल, जो रोल हम यूज करते हैं, क्योंकि रोलिंग मिल में मेजर पार्ट इज द रोल, बाकी उसमें कुछ है नहीं. एंड देन देयर इज द बिग हाउसिंग है, फिर उसमें बेरिंग्स है, तो उसमें हम ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे. व्हाट इज ऑफ आवर इंटरेस्ट इज द रोल्स विच आर यूज्ड. तो ये रोल किसके होते हैं? इट कैन बी ऑफ कास्ट स्टील, कास्ट आयरन, टंगस्टन कार्बाइड की भी हो सकते हैं, बट कंप्लीटली टंगस्टन कार्बाइड की नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ द टंगस्टन कार्बाइड इज हार्ड बट नॉट टफ. It is a brittle, so it can break under impact. So it can be tungsten carbide rings रहती है, और the steel can be coated with the tungsten carbide. जैसे हमारे ड्राइंग ड्रम जो रहते हैं ना, वायर ड्राइंग ड्रम, they are coated with the tungsten carbide. जो नए नए ड्रम्स आ रहे, they are all coated with the tungsten carbide. तो tungsten carbide is a very hard material. जो डाई हम यूज करते हैं इन द वायर ड्राइंग, दैट आर आल्सो मेड फ्रॉम TC, टंगस्टन कार्बाइड. इट्स बेसिकली अ पाउडर मेटलर्जिकल प्रोडक्ट ऑफ टंगस्टन, दैट इज W ऑन CO, दैट इज कोबाल्ट. टंगस्टन और कोबाल्ट का जो कॉम्बिनेशन है, बट इट्स नॉट एन अलॉय, इट्स द पाउडर मेटलर्जिकल प्रोडक्ट. दोनों के पाउडर मिक्स करके उसको सिंटरिंग करते हैं, एंड उसको फिर फर्दर हीट ट्रीटमेंट देते हैं, तब जाके आपको डाई बनती है, वायर ड्राइंग की डाई. ओके, दैट इज अ टंगस्टन कार्बाइड. जब हम वायर ड्राइंग का सेक्शन में पढ़ेंगे, द लास्ट सेक्शन, उसमें आपको क्लियर कर बताऊंगा डिफरेंट ग्रेड्स ऑफ टंगस्टन कार्बाइड यूज्ड, है ना, और कैसे बनता है. दैट प्रोसेस विल आल्सो इंक्लूडेड इन द
दैट ट्रेनिंग प्रोग्राम कि टंगस्टन कार्बाइड की जो डाई बनती है या So, what is the reason why we won't use aluminum? एल्यूमिनियम का टेम्परेचर कितना है? टेम्परेचर ऑफ मेल्टिंग पॉइंट कितना है एल्यूमिनियम का? So very high, sir. हाउ मच मेल्टिंग पॉइंट? एल्यूमिनियम, एल्यूमिना और एल्यूमिनियम? Aluminum. एल्यूमिनियम का टेम्परेचर कितना है मेल्टिंग पॉइंट? So that I can't Around predict, sir. But 480 60 होगा, नहीं 660 के आसपास होगा मोस्ट प्रोबेबली, 560 और 600 to 7. हाँ उसके बीच में है. लेट अस आस्क गूगल. आई थिंक व्हाट आई टेलिंग इट इज 660 मोस्ट प्रोबेबली और 560 दोनों में से होगा. 660 सर. 660 है ना? यस 660 है यार, अभी याद है ना. तो दैट एल्यूमिनियम टेम्परेचर इज 660 डिग्री सेंटीग्रेड. तो आप सोचो आपका जो बिलेट आ रहा है कितने टेम्परेचर पे आ रहा है गौरव? हाँ बिलेट कितने टेम्परेचर पे आ रहा है? 1200 है ना, 1100 to 1200 डिग्री सेंटीग्रेड okay, sir. है ना. एंड यू कैनॉट यूज ना दिस कॉपर एल्यूमिनियम ऑल दिस थिंग यू कैनॉट यूज बिकॉज हार्डनेस भी नहीं है ना. एल्यूमिनियम तो आप तो नॉर्मल नेल लोगे, नेल जो अपना निकल है ना आयरन है उसको आप स्क्रैच करोगे तो स्क्रैच हो जाता है एल्यूमिनियम पे. सॉफ्ट. Okay. You have to use hard material but at the same time tough also. So the property that is required is hard, it should be tough, wear resistant, उसके साथ उसका अलॉय भी फॉर्म नहीं होने को ना. इस तरह से हमको लेना पड़ता है मटेरियल सिलेक्शन. सो एंड नंबर 2 इज द लॉन्गर लाइफ. लॉन्गर लाइफ मिलने को ना, कॉस्ट कम होने को ना, एंड उसको फर्दर जब आप प्रोसेस करोगे बिकॉज डेफिनेटली उसको रीशेपिंग विल बी रिक्वायर्ड. तो आप जब उसको रीशिप करोगे तो दैट शुड ऑल्सो बी फैसिलिटेट दैट वन. क्योंकि रोलर ग्रूव है तो डेफिनेटली दे आर गोइंग टू गेट डैमेज्ड और worn आउट. तो उसके बाद उसका ऐसा था नहीं कि इतना बड़ा रोल हम फेंक देंगे. तो इट शुड बी ऑल्सो रिवर्क, पॉसिबल टू रिवर्क. ठीक है. सो दिस रोल्स आर लाइक दैट वन बट स्टिल कोई भी मटेरियल का रोल रहे इट इज कंटिन्यूसली स्प्रेड विद द वाटर ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग. क्योंकि अदरवाइज वो डैमेज हो सकते हैं, जो बेरिंग्स है वो डैमेज हो सकती है, हाउसिंग डैमेज हो जाती है बिकॉज दैट टेम्परेचर इज ट्रिमेंडस है ना. टेम्परेचर अलॉन्ग विद द प्रेशर ऑफ रोलिंग. सो दैट्स व्हाई इट इज कंटिन्यूसली कूल्ड विद द वाटर है ना. वाटर मिस्ट या कंप्लीटली वाटर. कल जो हमने वीडियो देखे थे उसमें देखा आपने कंटिन्यूसली उसके ऊपर वाटर गिर रहा था. सो एक रोल पास डिजाइन करके भी कंसेप्ट है ना. रोल पास डिजाइन करके एक कंसेप्ट है. अभी जो लाइक दिस इज अ 3 हाई मिल, 3 रोलर है तो इट इज अ 3 हाई मिल. एक्चुअली कुछ कुछ मिल में क्या होता है, इट गोज कंटिन्यूसली. ओके, इट कैन गो कंटिन्यूसली फ्रॉम दिस साइड टू नेक्स्ट साइड, नेक्स्ट साइड, नेक्स्ट साइड रहते हैं. कुछ कुछ मिल में बिकॉज ऑफ द से लेंथ कॉन्स्ट्रेंट और द डिजाइनिंग पार्ट वो क्या करते हैं, एक पार्ट इस रोल से जाएगा एंड देन देयर इज अ चेंजर, उसको चेंज कर सकते हैं. सो वो चेंज होके ऊपर साइड में जाता है एंड वहां से वापस आएगा. देन अगेन इट इज पास देयर, देन अगेन इट कम्स फ्रॉम द सेम ग्रूव, साइड ग्रूव है ना. जैसे ये है तो यहाँ से इसको इन किया तो क्या होगा, रोल के उस साइड में चला जाएगा. क्लियर है. नाउ उसके बाद क्या होगा, यहाँ से आएगा. आपने कभी वो देखा है ना, गन्ने का जब जूस बनता है तो एक बार जाता है और फिर उसको वापस लेके फिर एक बार डालते हैं आगे से एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उसकी वो चेंज करता है ना, गैप चेंज करता है. बट इस केस में तो आप कंटिन्यूअस गैप नहीं चेंज कर सकते हो. इसमें क्या होता है, यहाँ से हम उसको इन करेंगे फिर आगे निकल जाता है मटेरियल. देन शिफ्टर रहता है ना, लिफ्टर रहता है, उसको ऊपर वाला जो रोल है फ्रॉम दिस रोल इट इज पुश्ड इनसाइड है ना, एंड फिर यहां से अंदर जाएगा, वहां से इधर आएगा एंड देन अगेन इट इज पुश फ्रॉम देयर. सो एक ही स्ट्रैंड से
है ना, एक ही स्टैंड से आप जो प्रोडक्ट है उसको इस साइज से इस साइज में कन्वर्ट कर सकते हो, है ना। सो कोई कोई जो क्रूड मिल्स रहती है ना, नॉट सो सोफिस्टिकेटेड, और बिकॉज ऑफ द कॉन्स्ट्रेंट और बिकॉज ऑफ द प्राइस कॉम्पिटिटिवनेस ऑल्सो पीपल डिजाइन मिल्स लाइक दिस वन। पर वो क्या है, कंटिन्यूअस में जो बड़ा प्रोडक्ट बनता है उसके लिए इनिशियली क्या होता है, लेंथ कम रहता है ना। जो बिलेट है वो हार्डली 12 मीटर है, जो मिल डेढ़ टन की कॉइल बना रहे या 2 टन की कॉइल बना रहे तो हार्डली 9 मीटर या 10 मीटर का उसका बिलेट होगा। सो इनिशियली वो उतना ज्यादा इलोंगेट होता नहीं है ना। सो दैट्स व्हाई इट कैन बी डन लाइक दिस वन। ये डायमंड पास है, लाइक हॉरिजॉन्टल रोल, एक बार ऐसा करेगा फिर इसको इधर से प्रेस करेगा एंड देन एक बार इधर से प्रेस करेगा, एंड देन देयर आर द ओवल, जो हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल रोल्स जो रहते हैं ओवल शेप्स के लिए वो इस तरह से बनता है, देन वर्टिकल, देन अगेन हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल में उसको ओवल बनाएंगे, वर्टिकल में उसको राउंड बना देंगे, एंड डूइंग दैट वन द डायमीटर क्रॉस सेक्शन will get changed, the cross section will get reduced continuously, and it is being done in a straight line, जो आगे आगे नंबर ऑफ रोल्स लगे रहते हैं उसमें। सो जैसे हमारा डाई ड्राफ्टिंग रहता है ना, सेम वे दैट रोल पास डिजाइन इज ऑल्सो वेरी क्रिटिकल। पहले क्या होता था, जो फोरमैन रहते थे वो अपने हिसाब से उसको दे देते थे रोल पास डिजाइन को, है ना। बट नाउ this roll pass design is being done using the computerized programs. तो जो रोलिंग मिल प्रोवाइड करते हैं, apart from that there are third party programs also which can provide you roll pass design. सर्कुलर शेप में तो इजी है, there are complicated shape. आप जस्ट इमेजिन कीजिए how you will make a railroad, rail not roll, रेल जो रहती है हमारी रेलवे ट्रैक की रेल, how you will prepare it from the square section. So you can see this diagram here. इस डायग्राम में आपको क्लियर होगा कि कितने अलग अलग इसमें ट्रांसफर होने के बाद में आपके पास ये फाइनल प्रोडक्ट आता है, दैट इज अ रेल का जो ये रहता है ना, ट्रैक जो रहता है, दैट ये जो है नीचे ग्रूव रहता है, एक्चुअली इस शेप में दिखाया है, बट दिस इज अ टॉप पोर्शन एंड दिस इज अ बॉटम पोर्शन क्रॉस सेक्शन। तो एक जो हमारा स्क्वायर है पोर्शन, उससे आप डायरेक्टली ये तो बना नहीं सकते हो, बिकॉज इट्स नॉट अ फोर्जिंग, इट्स अ रोलिंग, है ना। इवन फोर्जिंग भी रहेगा तो भी वन स्टेप में आप नहीं कर सकते हो कोई भी कॉम्प्लिकेटेड इंट्रिकेट क्रॉस सेक्शन। तो उसमें क्या होता है, स्क्वायर बनेगा, फिर उसके बाद एक रोल जो डिजाइन रहता है रोल का वो इस तरह से रहता है, देन इस तरह से उसको हो जाएगा, देन नेक्स्ट इस तरह से, देन नेक्स्ट, एंड देन फाइनली यू विल गेट अ रेल like shape in this way. So this is basically called the roll pass design, how you will design the passes. वायर ड्राइंग में जैसे हम ड्राफ्टिंग करते हैं ना कि कितना परसेंट होना, बट हम जो प्रोडक्ट है वायर ड्राइंग में दैट इज अ सर्कुलर ओनली, है ना, सर्कुलर इन है, सर्कुलर आउट है, सो दैट्स व्हाई ऑल आर द राउंड शेप। बट रोलिंग मिल में क्या हो रहा है, द इनिशियल पोर्शन इज ऑफ अ स्क्वायर सेक्शन एंड देन वी आर गेटिंग द round section. Hello. So सेम वे से जो आई बीम रहता है ना, आई बीम कैसे बनता है देखिए, दिस इज द नंबर 1 पास, नंबर 2 पास, नंबर 3 पास, बट डायरेक्टली ऐसा नहीं हो रहा है ना, इट इज अ बताया गया है कि 3 पास में, बट 3 पास में नहीं होता है, इट टेक्स नंबर ऑफ पासेस, बट इस तरह से वो डिजाइन में चेंज होते रहता है। सो फ्रॉम दिस शेप, इवन इसके पहले स्क्वायर शेप रहता है, स्क्वायर से इसको इसमें ट्रांसफर होगा, यहाँ से इस शेप में, एंड देन फाइनली यू गेट द आई चैनल। ठीक है, सेम वे से जो एंगल्स बनते हैं ना, उसका भी अलग तरह का ये रहता है, रोल पास डिजाइन रहता है। तो जस्ट टू इट इज दिस इज आई एम शोइंग जस्ट टू मेक यू अवेयर
कि इस तरह से नंबर ऑफ पासेस से जब जाते हैं ना, देन यू विल गेट द सर्कुलर सेक्शन. ओके. एंड फिनिशिंग जो रोल रहते हैं ना, फिनिशिंग रोल आर प्लेस्ड एट अ एंगल ऑफ 45. इनिशियल जो रहते हैं रफिंग और उसके तो हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल है, बट जो फिनिशिंग के रहते हैं ना, तो दैट आर प्लेस्ड एट अ 45 डिग्री एंगल. जब आप ये भी देखोगे ना डायग्राम स्कीमेटिक, उसमें देखना इस तरह से प्लेस्ड रहते हैं 45 डिग्री पे. वाई 45 डिग्री? टू गिव द बेसिक, दोनों तरफ से उसके जो एंगल्स है ना, सभी एंगल से उसको प्रॉपर तरीके से ओवेलिटी मेंटेन होने को ना, इसलिए. एंड द फिनिशिंग रोलर्स कैन बी ऑफ डायमीटर, वेरी करता है अगेन प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट, बट नॉर्मली इट इज फ्रॉम 150 मिलीमीटर टू 250 मिलीमीटर के डायमीटर के रोल्स रहते हैं इन द फिनिशिंग प्रोसेस. ठीक है. तो ये रोलर में पूरा डिफॉर्म होने के बाद है ना, व्हेन वी गेट द दैट circular section at the final after the reducing and sizing mill, or you can say finishing mill, जहां पर हमने देखा था there is a continuous monitoring of the diameter also. It comes to the, after the cooling water chamber, it comes to the laying head. This portion is called laying head. This portion, it is called as laying head because it is laying the wire rod. It lays the wire rod on the conveyor. That's why it is called laying head. And it is moving at a tremendous speed. And ये conveyor जो रहता है, this is called a conveyor belt. So that Stellmore cooling belt is this one. And there is a temperature. How much temperature you are getting here at the time of laying, that matters a lot for the final microstructure. जो हमको final microstructure मिलने वाला है, that depends on the temperature during the processing also and at the laying head also. How much the temperature should be. यहाँ पर आपको ये दिख रहा है. What is it? Can anybody tell? कुछ गेस है कि क्या हो सकता है? एक यहाँ पर है, क्या होगा वो? The temperature, to measure the temperature. Yes, good. So it is basically the instruments for measuring the temperature. The infrared thermometers जो रहते हैं ना, so it is basically infrared thermometer or thermocouple you can say, to check the temperature. So that is being constantly monitored. So because how you will ensure it is running at that a high speed, very high speed, so you have to monitor the temperature and adjust the cooling on the previous processes or the previous passes. Because if variation is too much here, then your properties will be also vary. And it comes with the hood. Few this conveyor belt, they don't provide the hood also, but it is necessary for the retarded cooling. So what is this retarded cooling? आप अगर slow cool करोगे तो क्या मिलेगा? If any one of you have seen the TTT diagram, or even I have discussed at the start also, अगर wire rod slowly cool होगा तो क्या होगा? What kind of perlite you will get? The fine perlite. If it is cooled slowly, then not fine perlite. सर कोड ग्रेन मिलेगा. हाँ, कोर स्ट्रक्चर. बिकॉज आपको सीधा फंडा है, अगर हमने उसको स्लो कूल किया इसका मतलब ग्रेन ग्रोथ के लिए टाइम मिलेगा. ओके. सो इफ यू आर कूलिंग स्लोली, कोई भी चीज अगर आप स्लो कूल करोगे तो यू विल गेट अ टाइम फॉर ग्रेन टू ग्रो लार्ज. आप जस्ट समझ लेना कि यू आर कुकिंग समथिंग, आप जितना देर कुक करोगे उसको तो वो ग्रेन की साइज बढ़ेगी टू अ पर्टिकुलर एक्सटेंट ओनली, बट
more you cook it will get swollen up, है ना, वो बड़ा हो जाता है ना. तो रिटार्डेड कूलिंग भी एक फंडामेंटल है, हाई कार्बन में यूज नहीं है आपका, बट जस्ट टू मेक यू अवेयर ऑफ कि जो लो कार्बन वायर रहता है ना, जो लो कार्बन के वायर होते हैं, वायर रॉड्स होते हैं, दैट रिक्वायर वेरी गुड डक्टिलिटी, है ना. सो टू अवॉइड फॉर्मेशन ऑफ एनी हार्ड फेज और फाइन परलाइटिक फेज, इट इज कूल्ड वेरी स्लोली एंड दैट कैन बी अचीव्ड. एक तो बॉटम के ब्लोअर पूरे बंद होते हैं, एंड ये जो लीड्स है ना, ये जो कवर्स है, दिस कवर्स आर क्लोज्ड, ऑल कवर्स आर क्लोज्ड. तो अगर कवर्स क्लोज है तो क्या होगा, हीट लॉस नहीं होगा, एटमॉस्फेयर में हीट लॉस नहीं होगा, एंड इट विल टेक लॉन्गर टाइम टू गेट कूल्ड. तो अगर लॉन्गर टाइम लग रहा है इसका मतलब देयर विल बी अ ग्रेन ग्रोथ, सो यू विल गेट कोर्स परलाइटिक स्ट्रक्चर, है ना, which is having low tensile strength but better ductility. So for low carbon steel the retarded cooling is recommended. Again, process to process it varies, but it is recommended, and it is that facility is giving only for that. It is called retarded cooling. Retarded means slowly. Important parameter क्या है, लेइंग हेड टेम्परेचर, दैट आई टोल्ड यू कि लेइंग हेड का टेम्परेचर कितना होना चाहिए. सो अगेन डिपेंडिंग ऑन प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट it can vary from 800 to 900 degrees centigrade. Also it will depend on the what the scale what you want on the wire rod. अगर आप मैकेनिक या So I have not understood. So what is above the what is about the conveyor? What is here, sir? What is about the conveyor, sir? Which is resistance to temperature. हाँ, conveyor is basically what? Conveyor is to get transport the material. कोई भी conveyor का काम क्या होता है? It is transferring the material. तो जब ये आप उसको ले करोगे यहाँ पर, है ना, जब हम इसको लेकर, हाँ, yes sir, the above our laying head, हाँ, what it is called, sir, and what of which material it is made up of? The brown color. So the ears, sir, the brown color. Yes sir. Yes sir. Yes sir. This is ये जो कवर है, नॉर्मल कवर रहता है, एंड देन देयर इज अ, बिकॉज द फंक्शन इज दैट इट शुड नॉट लूज द हीट. तो वहां पर रिफ्लेक्टरी भी हो सकता है, या स्टील वूल रहता है ना हमारा, या फिर जो स्टील वूल ब्लैंकेट आता है जो इसमें डालते हैं हम अपने फर्नेसेस में टू अवॉइड द लॉस ऑफ हीट. या फिर हमारी जो थर्मोपैक की लाइन रहती है, ऑयल, हॉट ऑयल की लाइन, जिसके ऊपर हम मटेरियल लगाते हैं कुछ, दैट काइंड ऑफ मटेरियल विल बी देयर, but it is resistant to higher temperature. The basic function is to avoid the heat loss from here to here. Yes. बाकी तो metal है, that's why it is there, to avoid the heat loss. So laying head temperature vary from 800 to 900 degrees centigrade. Also depending on the laying head temperature, your UTS will change and the scale formation will also change. अगर आप लोगों को अभी I cannot include pickling also here in that one, but जब हम pickling की बात करेंगे ना, that time there are various kinds of pickling. One is chemical pickling. Chemical में भी acid से भी pickle हो सकता है, H2SO4 से भी pickle हो सकता है. Then there is a basically pickling means cleaning and coating process. So wire rod cleaning and coating process जो wire plant में होता है. Then another variation is the mechanical descaling of the wire rod. So in that mechanical descaling of the wire rod, what we are doing basically is to remove the scale from the wire rod by way of mechanical roller, the bending action given by the mechanical rollers.
तो अगर हमको बेंड करना है और वहां से स्केल रिमूव करना है, एंड अनदर प्रोसेस इज केमिकल बाय वे ऑफ एसिड। तो जो एसिड होता है ना, इट कैन रिमूव द जो स्टक हो जाती है ना, जो हार्ड स्केल होती है, रेड रस्ट होता है, इट कैन रिमूव दैट वन। बट जो स्केल होती है, मैकेनिकल डिस्केलिंग होती है, इट इज नॉट पॉसिबल टू रिमूव दैट हार्ड स्केल। ओके, सो द नेचर ऑफ द स्केल शुड बी ब्रिटल, और स्केल ब्रिटल कब होगी? व्हेन द स्केल इज थिकर। So if you want to get a scale suitable for mechanical descaling, then you should ask the supplier to give you the scale in that particular range. उसकी एक रेंज है कि हमको 0.1% स्केल चाहिए, 0.05% स्केल चाहिए, मिल स्केल चाहिए। And how they can control? They can control it using increasing the laying head temperature. अगर आप उनको बोले कि प्लीज increase the laying head temperature so that you can get a thicker scale suitable for mechanical descaling. ठीक है, so that is the how the laying head temperature can be varied to get the desired properties. And laying head temperature अगर कम है, बहुत ज्यादा कम कर लेंगे तो हमारी जो स्केल है वो कम फॉर्म हो जाएगी। तो इफ यू आर थिंकिंग कि आपके स्केल लॉसेस ज्यादा है एंड द केमिकल जो पिकलिंग हो रहा है हमारा, इट इज फॉर दैट इट इज नॉट सुटेबल, यू कैन आस्क टू रिड्यूस द लेइंग हेड टेम्परेचर। यू कैन आस्क द सप्लायर कि हमको स्केल कम चाहिए, फॉर दैट दे कैन रिड्यूस द लेइंग हेड टेम्परेचर। Then there is a air cooling blower operation. Now who is cooling this one? How you are getting the microstructure is by way of cooling. Structure हमको तभी मिलेगा when we heat anything above the recrystallization temperature, not recrystallization, austenitic temperature, and then cool it by using media, different media. Now depending on the use of media, the structure what you get, it will depend on how fast or how slow you cool. TT diagram देखेंगे हम, उसके अंदर आपको क्लियर हो जाएगा। Now here the function of air cooling is to sorry. So the air cooling is basically the blowers are there at the bottom side to cool the wire rod at a particular rate. If you are cooling the wire rod at that particular rate, you will get the required structure. अगर आपके पास cooling blower नहीं है wire rod mill में, then it is not a controlled cooling. It is basically a uncontrolled cooling. Uncontrolled cooling क्यों होगा? Because it will depend on the atmospheric temperature, ambient temperature, also on the air current in the atmosphere or natural air current. अब आप मुझे बताइए, if that is the condition, then the structure what you get है ना in the winter and the structure what you get in the summer will be different or not? Different होगा? Yes, sir. Different होगा कि नहीं होगा? Yes, sir. It would be different. Different होगा। Anybody please answer? अगर yes sir. Now अगर आपके पास blower भी है, तब भी do you need to adjust the blowing, the air blowing parameters depending on the various seasons or not? You have to do that or not? Yes, we have to do. Yes, sir. Yes, sir. Now yes, सही है। तो हमको क्या करना है, वायर रॉड कभी कभी अगर आपको एनालिसिस करना है, डाटा एनालिसिस करना है, you people can always do the analysis
कि हमको विंटर में जो आता है वायर रॉड, उसका यूटीएस का पैटर्न सेम केमिकल कंपोजिशन है ऑलमोस्ट, है ना, यू कैन नॉट से 1 to 1, बट 82 वायर रॉड है तो 82 में 81 कार्बन, 82 83 कार्बन चलता है. So in that composition, are you getting the similar UTS in the summer? And check whether you are getting the similar UTS in the winter, and what is the UTS in the rainy season. If you are getting the variation, है ना, विंटर में थोड़ा ज्यादा आएगा यूटीएस, अगर उन्होंने एडजस्ट नहीं किया पैरामीटर, तो आई एम टॉकिंग आपका यूटीएस में विंटर में प्रॉब्लम ज्यादा आएगा. सेकंडली, हो सकता है आपका जो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है उसमें भी यूटीएस आपको बढ़ा हुआ मिले. तो अगर इस तरह के प्रॉब्लम आपको मिलते हैं, यू कैन कोरिलेट इट विद द कूलिंग ऑपरेशन एट द कन्वेयर बेल्ट. यू कैन ऑलवेज रेज दिस इशू टू द सप्लायर कि हमारे यहाँ पे यूटीएस वेरिएशन आ रहा है, केमिकल कंपोजिशन इज ऑलमोस्ट सेम, देन are you changing the air cooling parameter or not? You can always ask them. वो करते होंगे, जो अच्छी मिल्स है डेफिनेटली वो करते होंगे, बिकॉज जो आउटगोइंग प्रोडक्ट है उसका वो यूटीएस टेस्टिंग करते हैं. बट यूटीएस की भी रेंज है. फॉर एग्जांपल, दे आर सेइंग इट विल बी फ्रॉम 110 to 120 kg per mm square. Now in winter, if they get 118, it is a pass material, so quality will pass it, production will continue to produce because it is within that parameter. Now if in the summer it is going to 112, still it is okay within the process, within the specification, so they will keep on sending you the material because it lies within the specification limit. But as a customer, as a receiver of the material, आप लोगों को क्या करना है, उसका एनालिसिस करना है कि हमको जो मटेरियल आया उसका यूटीएस क्या वेरी हो रहा है, परसेंटेज आरए जो है, रिडक्शन एरिया है, क्या वो चेंज हो रहा है. अगर ऐसा होता है तो आपको पिन पॉइंटेडली बोलना है कि नहीं, समर में हमको अलग मटेरियल मिलता है और उसमें अलग मिलता है. इसके लिए फिर आप हिस्टोग्राम जो रहता है ना, 7QC टूल में मैंने पढ़ाया था, अगर आप में से किसी जिन लोगों ने अटेंड किया होगा, यू कैन यूज द हिस्टोग्राम एनालिसिस, है ना. देयर यू कैन सी इफ देयर इज अ बाइमोडल हिस्टोग्राम, इट विल शो यू कि ये अलग अलग प्रोसेस से आया हुआ है, मीन्स अलग अलग प्रोसेस पैरामीटर. ठीक. सो हाँ, So that's why most of the wire manufacturing companies are in the south, sir. They are not situated in the northern portion. दे आर, बिकॉज आपने कहा जैसे पतरातू वगैरह जो प्लांट है नॉर्थ में तो नहीं है, बट वो इसलिए नहीं है बिकॉज ऑफ टेम्परेचर. आप तो फिर बोलो चाइना में जो मिल है इट इज से वर्किंग एट -डिग्री सेंटीग्रेड ना, माइनस टेम्परेचर. So, but in China, the temperature is almost near to 24-25 degrees Celsius during summer, and during winter it goes down to -10. So it depends. Again, it depends on the location to location. China का northern part it is much cooler compared to the central part. शंघाई, बीजिंग वगैरह जो है ना, उनसे वो जो northern part है it is much cooler. जब शंघाई में आपका या बीजिंग में टेम्परेचर ऑलमोस्ट 4-5 डिग्री रहता है, तो वहां पे -15 रहता है. सो नॉर्दर्न पार्ट में हमारे यहाँ पे क्यों नहीं मिल्स, बिकॉज ऑफ दी जो मैंने बताया था इंटीग्रेटेड प्लांट कहाँ पे है, जहाँ पर आपके पास अबंडेंस में ओवर्स अवेलेबिलिटी है. तो आपके मिल्स देखना आप झारखंड, छत्तीसगढ़, नीचे केरला या फिर तमिलनाडु में आपको ज्यादा मिलेंगे, बिकॉज द आयरन ओर अवेलेबिलिटी इज देयर ना, मैक्सिमम आयरन ओर अवेलेबिलिटी इज देयर. तो जितने ज्यादा आयरन ओर लोगों को मिलेगा तो व्हाई यू विल पे ऑन द ट्रांसपोर्टेशन, क्योंकि आप 20 टन ट्रांसपोर्ट करोगे उसमें से 10 ही टन आपको आयरन मिलेगा. सो व्हाई यू विल लूज ऑन दी ट्रांसपोर्टेशन. दैट्स व्हाई फिर वहीं पे जहाँ पे आयरन ओर अवेलेबिलिटी रहती है वहीं पे रहता है. सेकंडली, सी शोर के पास ज्यादा रहेंगे, है ना. द रीजन बीइंग, इफ यू आर इंपोर्टिंग समथिंग और एक्सपोर्टिंग समथिंग, बिकॉज इट्स अ बल्क थिंग, सो दैट वे इट विल बी वेरी कॉस्ट इफेक्टिव फॉर द मील्स. तो अगर आप सीशोर के पास में लोकेटेड रहते हो या नियर अबाउट रहता है, तो इट विल बी ऑलवेज बेनिफिशियल टू देम फॉर द एक्सपोर्ट ओरिएंटेड जो यूनिट रहते हैं उनके लिए बेटर रहता है. Okay.
So basically अगर यू आर वायर मैन्युफैक्चरर, तो आपको क्या देखना है, आपको उसके रोल पास डिजाइन से अगर इतना ज्यादा इंटरफेरेंस हम नहीं कर सकते हैं, बिकॉज इट इज देयर टेक्नोलॉजी। आप लोगों को बताया इसलिए कि यस आपको पता होना कि इट इज अ रोल पास डिजाइन होता है। बिकॉज व्हाट हैपन्स, आप जब कभी उनकी विजिट करते हो या वो लोग आपके पास आते हैं, व्हेन यू रेज दिस क्वेश्चन कि सर रोल पास डिजाइन कैसे होता है, आपका वर्टिकल कितने, हॉरिजॉन्टल कितने हैं, आपके फिनिशिंग लाइन में कितने रोलर्स का सेट है, 45 डिग्री पे है या सब हॉरिजॉन्टल वर्टिकल है, आप कूलिंग वाटर का टेम्परेचर कैसे मेंटेन करते हो, लेइंग हेड का टेम्परेचर कैसे रहता है। तो अगर आप में से किसी ने ऐसे क्वेश्चन उसको पूछे तो दैट पीपल विल नो कि जो उनके सामने बैठे हैं ना, दे नो अबाउट द वायर रॉड प्रोसेस, तो ब्लफ नहीं करेंगे एंड दे विल इंस्टेड ऑफ से गिविंग हियर एंड देयर आंसर, देन दे विल फोकस ऑन द टेक्निकल डिस्कशन मोर। तो आपको इस चीज को यूटिलाइज करना है ड्यूरिंग द डिस्कशन और इवन फॉर द योर प्रोडक्ट इंप्रूवमेंट। तो इनकमिंग मटेरियल जब आता है उसका एनालिसिस कीजिए, उसमें देखिए यूटीएस वेरिएशन होता है नहीं होता है, फिर आप रेस क्वेश्चन कर सकते हैं थ्रू योर परचेज डिपार्टमेंट कि हमको ये उनके प्रोसेस के बारे में बताइए, रफली तो भी बताइए कि व्हाट ऑल द प्रोसेस दे आर फॉलोइंग, है ना, व्हाट इज द लेइंग टेम्परेचर दे आर फॉलोइंग। और आज जो लेइंग टेम्परेचर फॉलो कर रहे हैं, अगले एक साल बाद पूछना कि राइट नाउ सेम लेइंग टेम्परेचर इज देयर और यू हैव चेंज्ड, क्योंकि दिस ऑल थिंग्स, है ना, 5 डिग्री 10 डिग्री विल ऑल्सो इम्पैक्ट द प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट परफॉर्मेंस। ठीक, सो एयर कूलिंग ब्लोअर का जैसे अगर इफ यू पीपल आर इंटरेस्टेड, यू कैन कलेक्ट द डेटा ऑफ वेरियस मंथ्स, और वेरियस मंथ्स का सिमिलर केमिस्ट्री के मटेरियल का आप यूटीएस प्लॉट कीजिए एंड देन सी वेदर देयर इज अ वेरिएशन और नॉट। क्वालिटी कंट्रोल में जाइए, उनसे डाटा लीजिए, थोड़ा प्लॉट करके देखिए, यू विल सी सम डिफरेंस। और अगर डिफरेंस नहीं है, देन योर सप्लाई इज क्वाइट गुड, ही इज मेंटेनिंग द प्रोसेस पैरामीटर वेरी वेल। देन कन्वेयर स्पीड ऑल्सो, कन्वेयर स्पीड पे क्या डिपेंड करेगा, अगर कन्वेयर स्पीड हाई है तो क्या हो जाएगा, व्हाट विल हैपन, सबसे पहले तो कन्वेयर स्पीड स्लो है। फॉर एग्जांपल कन्वेयर स्पीड 0 है तो क्या हो जाएगा, जो लेइंग हेड से जो मटेरियल निकलेगा वो कहाँ पे जाएगा, So the material would stuck at one place only. क्या हो जाएगा, हीट तैयार हो जाएगा सर कन्वेयर हाँ स्मिथ। सर कन्वेयर स्पीड लो रहेगा तो मतलब उसका कूलिंग रेट भी स्लो होगा ना। कूलिंग रेट स्लो नहीं, सबसे पहले आप बताओ कि जो रिंग गिर रही है उनके साथ क्या होगा, व्हाट द फिनोमिनन यू विल ऑब्जर्व ऑन दैट रिंग। जैसे मैंने बोला ना 0 स्पीड है, इफ इट इज 0 इट इज नॉट मूविंग एट ऑल, तो क्या हो जाएगा, जो मटेरियल हमारा गिरेगा कहाँ गिरेगा, एक दूसरे के ऊपर, यस सर। है ना। तो रिंग विल बी ऑन द रिंग, एक दूसरे के ऊपर आएगी। इसका मतलब जैसे जैसे स्पीड बढ़ेगा तो क्या होगा, रिंग एक दूसरे के ऊपर जो ओवरलैपिंग वाला जो पोर्शन है इट विल गेट रिड्यूस्ड। ओवरलैपिंग जो होती है ना इट विल गेट रिड्यूस्ड। अगर जैसे ये आपको दिख रहा है यहाँ पर देयर इज अ गैप, ये दिख रही है ना, दो के बीच में गैप दिख रही है आपको, यस सर, है ना। हाँ। नाउ इफ द कन्वेयर स्पीड इज वेरी लो, वेरी स्लो, व्हाट विल हैपन, वो एकदम एक दूसरे के पास रहेंगे, इवन एक दूसरे के ऊपर भी चढ़ सकते हैं, रिंग और रिंग, रिंग और रिंग रहेगी। एंड अगर बहुत ज्यादा करोगे तो क्या होगा, वो दोनों के बीच में वो डिफरेंस हो जाएगा। तो आपका ब्लोअर सेम है ना, ब्लोअर की स्पीड सेम है, एयर का फ्लो सेम है, बट अगर आपकी कन्वेयर स्पीड वेरी होगी तो भी आपका कूलिंग रेट चेंज हो जाएगा। जो स्विम में बताया कि यस द फाइनल इंपैक्ट विल बी ऑन दी कूलिंग रेट, बट कूलिंग रेट अगर आपका स्पीड कन्वेयर का स्पीड कम है तो ओवरलैपिंग ज्यादा होगा, ओवरलैपिंग ज्यादा है तो कूलिंग कम हो जाएगा, कूलिंग रेट कम हो जाएगा। वाई, बिकॉज मटेरियल इज अबव ईच अदर, एक दूसरे के ऊपर मटेरियल है, इट विल नॉट गेट एयर प्रॉपरली, तो एक्सपोज ही नहीं है ना मटेरियल। इफ इट इज नॉट एक्सपोज इट विल नॉट गेट कूल्ड, इट विल गेट ओनली कूल्ड बाय वे ऑफ कंडक्शन विद द बॉटम साइड रिंग। पहले क्या होगा, बॉटम की रिंग कूल, टेम्परेचर डाउन होगा तो इसका टेम्परेचर उसमें ट्रांसफर होगा, दैट वे इट विल गेट कूल्ड। So that's why that conveyor speed is maintained to have the optimum
लेइंग, जिससे आपको फिर वो ये मिलता है. So basically these are, all parameters are validated by the wire rod mill. जो वायर रॉड मिल वाले पर्सन्स रहते हैं वो लोग वैलिडेट करते हैं, है ना. जैसे आपके पेटेंटिंग की स्पीड, यू आर द वैलिडेटिंग पर्सन, नॉट योर सप्लायर, नॉट योर कस्टमर. आपका कस्टमर आपको बोलेगा नहीं कि नहीं आपकी पेटेंटिंग की स्पीड तो इतनी रहनी चाहिए. डेफिनेटली ही कैन आस्क वेदर यू हैव वैलिडेटेड इट प्रॉपरली और नॉट. आपके वैलिडेशन के रिजल्ट क्या है. तो सेम वे आपके पास आते तो आप पूछ सकते हो कि सर उसकी स्पीड कितनी होती है, आपका जो कन्वेयर बेल्ट है उसकी स्पीड कितनी होती है, वो कंट्रोल कैसे करते हो आप, है ना. व्हाट कंट्रोलिंग यू हैव, हाउ आर इंश्योरिंग दैट द सेम स्पीड इज फॉलोड, व्हाट काइंड ऑफ वर्क इंस्ट्रक्शंस यू आर गिवन टू द शॉप फ्लोर. अलग अलग प्रोडक्ट के लिए अलग होना ही चाहिए स्पीड डेफिनेटली, क्योंकि डायमीटर अलग है. तो ऐसा भी नहीं हो सकता कि सेम स्पीड पे चल रही. तो आप पूछ सकते हो व्हाट इज द रेशियो बिटवीन द लेइंग हेड स्पीड एंड योर कन्वेयर स्पीड, कितने एमएम का दोनों के बीच में रिंग्स में गैप आ सकता है. तो ऑल दिस क्वेश्चन कैन बी रेज्ड बाय यू पीपल. और इफ यू आर वर्किंग इन द प्रोडक्ट डेवलपमेंट, है ना, इन सप्लाई डेवलपमेंट, यू कैन आस्क देम कि हम ये वेरी करके देखते हैं कि अगर हम कन्वेयर स्पीड कम कर देते हैं, व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑन द प्रोडक्ट, immediate product, that is wire rod, and then the finished product in the form of wire. आपके आप अगर यूपीएस की समस्या है डायरेक्ट ड्रॉन में, यू कैन ऑलवेज प्ले विद द लेइंग हेड टेम्परेचर एंड द कन्वेयर स्पीड ऑल्सो, बिकॉज वायर रॉड मिल जो वायर रॉड बनाती है ना, इट इज फॉर से इफ दे आर मेकिंग लो कार्बन, तो उनको पता नहीं फिनिश प्रोडक्ट क्या है. वो तो मार्केट में जो ज्यादा प्रोडक्ट बनता है उसके हिसाब से एडजस्टमेंट करते हैं. If you are making any specialized product, you have to ask them, क्योंकि high carbon steel wire rod के there are tremendous applications, है ना. स्प्रिंग भी बनते हैं, फिर स्प्रिंग में मैट्रिक्स स्प्रिंग बनते हैं, हाई एंड के स्प्रिंग बनते हैं, ऑटोमोबाइल्स के स्प्रिंग बनते हैं. तो you have to specify what you are using it for, और उसके हिसाब से आपको पीछे का जो प्रोसेस है उनका ऑप्टिमाइज कराना पड़ेगा, एडजस्ट करना पड़ेगा. बिकॉज वायर रॉड की जो क्वालिटी है, इट विल लार्जली इम्पैक्ट योर फिनिश प्रोडक्ट क्वालिटी. आपका प्रोसेस कंट्रोल कितना भी अच्छा रहे, बट इफ यू आर गेटिंग अ बैड क्वालिटी प्रोडक्ट, उसको आप कन्वर्ट तो नहीं कर सकते गुड क्वालिटी में. हाँ, जो अच्छा मटेरियल आया उसको बेहतरीन बेहतरीन बना सकते हो आप, और बेहतर बना सकते हो, बट जो खराब आया उसको यू कैनॉट मेक इट गुड. सो दिस वे यू कैन work with the supplier and improve the quality of the product, है ना. यूज ऑफ कवर्स तो हमने डिस्कस किया ही था, फॉर द रिटार्डेड काइंड ऑफ कूलिंग, नॉट फॉर द हाई कार्बन, but for low carbon it is recommended. The slow cooling rate is recommended. A typical temperature of the material at various stages of wire mill, रेटिंग फर्नेस जो होता है उसमें अराउंड 1200 डिग्री सेंटीग्रेड तक, रफिंग मिल में अराउंड 1100 तक, इट वेरीज फ्रॉम 1000 to 1100 you can say. Again, depending on the size also it changes. Intermediate mill around 1000 degree centigrade, finishing mill में 900 तक, cooling bed बोलो या conveyor बोलो, it will be around 800 to 900 degree centigrade. तो आप 840, 860, इस तरह से भी आप उसको कूलिंग बेड का आपको टेम्परेचर बता सकता है. सो इफ यू पीपल आर इंटरेस्टेड, you people should raise a query to your purchase department people or to the through the quality control department and ask what is the temperature is kept by the wire rod supplier for that particular grade. So you can give them that, yes, for 6165, 7175 and 8185, what is the laying head temperature you are keeping, or you can ask them reheating temperature kitna hota hai. So you people have the right, as a customer you can always ask the supplier, because it's not a I don't think it's a proprietary nature of information. They will be ready to share it with you. So if you people are interested, please get this information and then we can correlate कि वो actually में कितना रखते हैं from the theoretical data what we have.
बट प्रैक्टिकली में भी मैंने जो जाके देखा है मिल्स में, रीहीटिंग फर्नेस आई नो एंड द कूलिंग बेड इज इन द सेम रेंज. ठीक है. नाउ कमिंग टू दी स्केल. स्केल का अपन एकदम फास्ट कर लेते हैं बिकॉज दैट इज हैविंग नॉट दैट मच सिग्निफिकेंस. हम पिकलिंग के वक्त इसके ऊपर ज्यादा फोकस करेंगे. बेसिकली स्केल 3 टाइप का होता है एंड बिकॉज स्केल फास्ट कर लेंगे, आई वांट टू फोकस ऑन दी आयरन कार्बन डायग्राम एंड टीटीडी डायग्राम एंड कार्बन इक्विवेलेंट बिफोर वी क्लोज सेशन. ओके. सो स्केल जो होता है ना 3 टाइप का होता है. बेसिकली इट्स अ ऊस्टाइट दैट इज आयरन ऑक्साइड, मैग्नेटाइट जो Fe3O4 है एंड हेमेटाइट दैट इज Fe2O3. और नहीं है, इट्स अ ऑक्साइड. और भी ऑक्साइड ही रहता है, बट apart from the iron oxide there are number of other impurities. Now here we are talking about the scale on the wire rod. कोई भी मटेरियल जब आप हीट करोगे and it is exposed to the air, what will happen? It will get oxidized. It's a general phenomena. जो हमारी कोई भी मेटल की चीज रहती है, आप अगर उसको हाई टेम्परेचर पे लेके नॉर्मल बाहर रख दोगे ना, तब भी उसके ऊपर स्केल जमा हो जाएगा. So it's a natural, you can say chemical phenomenon is there, oxidation will happen. Now wire rod जब बनता है तो there are 3 layers of oxidation happen. So सबसे पहले FeO बनता है, then there is a presence of Fe3O4 and then there is a presence of Fe2O3. इसमें जो you can say 900 डिग्री सेंटीग्रेड के above and पहले 20 seconds तक, that's why the cooling bed temperature is necessary, cooling bed temperature necessary. तो around 20 seconds तक जो होता है, FeO का ग्रोथ बहुत फास्ट होता है. This iron starts oxidizing very fast up to 20 seconds. और उसके बाद क्या होता है, once the oxide scale is formed, जो bottom का surface है, now it is no more available for the oxygen to convert. So उसके बाद फिर उसका लिनियरिटी नहीं रहता, मीन्स वो स्लो हो जाता है या फिर इरेटिक रहता है. बट जो थिकनेस ऑफ Fe3O4 है, बिकॉज FeO से कन्वर्ट होकर Fe3O4 बनता है, तो इट इज रिमेनिंग ऑलमोस्ट कांस्टेंट. और एक बात याद रखना है कि द टेम्परेचर ऑफ द वायर रॉड वंस इट रीचेस बिलो 650 डिग्री सेंटीग्रेड, देयर इज नो मोर ऑक्सीडेशन, और यू कैन से द ऑक्सीडेशन इज वेरी स्लो. तो हमारा एम क्या होना चाहिए, हाउ फास्ट वी कैन अचीव दैट 650 डिग्री सेंटीग्रेड. बट वेरी फास्ट भी ये नहीं है. एक ऑप्टिमाइज कूलिंग रेट कैसे हम अचीव कर सकते हैं, तो जब फॉर्मर में जाता है उसके पहले वो टेम्परेचर हमारा 650 के नीचे हो जाना चाहिए. ठीक है, ताकि जो स्केल फॉर्मेशन है वो कंटिन्यू ना हो. Mechanical descaling में what is important, you need to have the Woodstite scale. And जैसे मैंने पहले बताया था, it can be achieved by using the higher that coiling temperatures. So that will be around with laying head temperature that is almost 900 degree centigrade. अब don't follow as it is, है ना, because it will again change from carbon to carbon. आपको बस इतना ही पूछना है जो आपके सप्लायर्स है कि what kind of scale they are getting on the wire rod. आप उनको पूछ सकते हो कि हमको आप एनालिसिस करके बताओ कि जो स्केल का परसेंटेज कितना है, उसमें FeO का परसेंटेज कितना है. इफ दे आर डूइंग वेल एंड गुड, पर एटलीस्ट यू कैन आस्क देम कि आपके पास जो मटेरियल आता है उसमें स्केल परसेंटेज कितना है, बिकॉज इट्स अ डायरेक्ट लॉस टू द कंपनी. स्केल अगर ज्यादा कम होता है तो बिकॉज इट इज नॉट कन्वर्टिंग इनटू द फाइनल प्रोडक्ट, यू आर पेइंग फॉर दैट बट इट इज नॉट कन्वर्टिंग टू द फाइनल प्रोडक्ट. सेकेंडली, अगर स्केल ज्यादा होता है इट विल टेक हायर केमिकल, है ना, तो हायर केमिकल इट विल रिक्वायर टू रिमूव द स्केल. So lower temperatures around 850 डिग्री सेंटीग्रेड आपको ऐसा स्केल मिलेगा which will be useful for chemical descaling. Now
if you are using mechanical descaling or if you are using chemical descaling, depending on that you have to ask, because wire rod to जो supply कर रहा है, they will supply to almost all the customer invariably without thinking whether they are using it for the mechanical descaling or for the chemical descaling. अगर अच्छा supplier है, they will definitely capture the VOC, that is voice of the customer, कि आपके पास क्या प्रोसेस है, केमिकल डिस्केलिंग है कि मैकेनिकल डिस्केलिंग है, व्हाट इज द नेक्स्ट प्रोसेस, आपका फिनिश प्रोडक्ट क्या है, फिनिश प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट क्या है. तो जो टेक्निकल डिलीवरी कंडीशन साइन करने के पहले ऑल दिस थिंग्स दे विल कैप्चर एंड बेस्ड ऑन दैट दे शुड डिजाइन द प्रोडक्ट फॉर दैट पर्टिकुलर एप्लीकेशन. ये नहीं कि इट शुड नॉट बी लाइक अ जनरल कमोडिटी कि हाँ एक बन गया है वायर रोड, आप लेके जाओ, आपके लिए चल जाएगा. और ऐसा नहीं है कि आपकी प्रॉपर्टी पे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है या फिर ये जो चेंजेस है ना स्केल के, यू विल नॉट नोटिस अनलेस एंड अनटिल यू लुक फॉर दैट चेंज. नॉर्मल केस में आप जाओगे तो आपको जो वायर रोड में कोई नहीं बता पाएगा कि नहीं इसमें ज्यादा स्केल है, कम स्केल है, या इसका कुछ इम्पैक्ट हो रहा है प्रोसेसिंग पे. वो आपको तब पता चलेगा जब आप उस एंगल से उसको देखने जाओगे. आज तक आप में से कितने लोगों ने सोचा था कि द रेट ऑफ स्केल will also affect the pickling process? If anybody is there कि हाँ उन्होंने सोचा कभी कि नहीं अगर मैं स्केल को कम कराता हूँ या फिर बढ़ाता हूँ तो मुझे कुछ फायदा हो जाएगा, प्रोसेसिंग में फायदा होगा, केमिकल कंजम्पशन कम हो जाएगा, या द क्वालिटी ऑफ द डिस्केलिंग विल बी बेटर. अगर नहीं सोचा है तो नाउ यू पीपल कैन स्टार्ट थिंकिंग ऑन दैट लाइन ऑल्सो. ठीक. सो स्केल के बारे में हम फर्दर इसमें भी पढ़ेंगे, बिकॉज देयर द रिएक्शंस विल बी देयर, हाउ द HCl विल रिएक्ट विद द आयरन, हाउ इट फॉर्म आयरन क्लोराइड FeCl, and in the mechanical descaler what happens, why it breaks, scale is brittle, तो इसलिए आप उसको जैसे ही बेंड करोगे it will start flaking out. So that we will discuss in detail. Now coming to the microstructure, ये सब कुछ जो चल रहा है ना, वायर रॉड को रीहीट किया, सब कुछ किया, लेइंग हेड का टेम्परेचर हमने मॉनिटर करना है, स्पीड मॉनिटर करनी है, ब्लोअर जो लगे नीचे उसको देखना है, इतना सब कुछ क्यों कर रहे हैं हम? दैट इज बेसिकली टू अचीव द डिजायर्ड प्रॉपर्टीज इन द मटेरियल. और डिजायर्ड प्रॉपर्टीज जो रहती है मटेरियल की, दैट डिपेंड्स ऑन द माइक्रोस्ट्रक्चर. मटेरियल की जो भी प्रॉपर्टी मिल रही है दैट इज बाय वर्च्यू ऑफ माइक्रोस्ट्रक्चर. तो जो परलाइट रहता है, यू विल लिसन दिस वर्ड मोर ऑफन, परलाइट 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 इन द वायर ड्रॉइंग इंडस्ट्री. व्हाट इज दिस परलाइट एक्चुअली? परलाइट इज बेसिकली अ लैमिलर स्ट्रक्चर ऑफ iron carbide and alpha ferrite. So it's a plate-like structure of iron carbide, that is Fe3C, because iron will react with the carbon to form iron carbide when it is getting cooled, and one will be ferrite. So you will have alternate plates of iron carbide and ferrite. So this is called perlite structure. तो ये जो आपको दिख रहा है ना, these are the lamellas. It is known as lamellas of perlite. तो ऐसा स्ट्रक्चर अभी कभी दिखे स्टील में है ना, सो यू कैन से इट्स अ परलाइटिक स्ट्रक्चर. एंड उसके ओरिएंटेशन अलग रहते हैं. दीज आर द ग्रेन्स बेसिकली. एक ये ग्रेन फॉर्म हुआ है यहाँ पर, देन इधर ग्रेन फॉर्म हुआ है. नाउ द प्रॉपर्टीज जो होती है, इट विल नॉट ओनली डिपेंड ऑन द दिस grain size. Along with the grain size, it will also depend on कि जो interlaminar spacing कितनी है, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कितनी नैनोमीटर्स है. Also it will depend on कि जो लेंथ है, जो परलाइट की, जो आयरन कार्बाइड की और इसकी जो लैमिला की लेंथ है, हाउ मच दैट इज, उसके ऊपर भी डिपेंड करती है बहुत सारी प्रॉपर्टी. उसके नंबर्स हम डिस्कस करेंगे डेफिनेटली बाद में जब पेटेंटिंग में जाएंगे, कि हाँ आपको अगर ऑप्टिमाइज प्रॉपर्टी चाहिए. एंड दिस जो है ना, लैमिला के बीच की गैप्स कितनी है, उसकी लेंथ कितनी है, यू कैन नॉट चेक इट
थ्रू यूजिंग द मेटलर्जिकल माइक्रोस्कोप, जो 1200 मैग्निफिकेशन तक ही रहते हैं, ज्यादा आप 1500 तक जा सकते हो ना. यू हैव टू यूज SEM, दैट इज स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. तो स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में जाओगे तो यू कैन गेट 5000, 15,000, 50,000 इस तरह के मैग्निफिकेशन आपको माइक्रोस्ट्रक्चर के दिखेंगे. तब के जाके आप यू कैन कैलकुलेट, एंड इट हैज द फैसिलिटी ऑल्सो टू कैलकुलेट जो लैमिलर स्पेसिंग और लैमिला लेंथ जो रहती है, इट कैन कैलकुलेट. सो द पर्पज इज टू हैव अ फाइन परलाइटिक स्ट्रक्चर. अभी मैं आयरन कार्बन डायग्राम दिखाता हूँ आपको. So this is basically a iron carbon diagram. स्टील कहाँ तक है? अराउंड 2 पॉइंट, नॉर्मल में आप बोल दो 2% तक, बट एग्जैक्टली इट्स 2.14% तक कार्बन जो रहता है वहां तक देयर इज अ स्टील. यू कैन सी इट्स अ स्टील. एंड देन अबाउ दैट इट स्टार्ट्स कास्ट आयरन. तो ये आयरन कार्बन डायग्राम आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, because today I am not able to cover everything, each and every aspect. तो जब ये हमारा आएगा तो उसके पहले आप इसको अच्छे से स्टडी कर लेना. आपके डाउट्स वगैरह जो रहते हैं ना, फिर यू कैन क्लैरिफाई इट. नॉर्मली द आयरन कार्बन डायग्राम ये आपको बताती है कि व्हाट आर द वेरियस फेजेस ऑफ स्टील, द alloy of iron and carbon, what are the various phases of steel at various temperature. वाई एक्सिस पे क्या है? टेम्परेचर. एक्स एक्सिस पे क्या है? कंपोजिशन ऑफ कार्बन, है ना. इट्स ओनली द आयरन एंड कार्बन डायग्राम. सो व्हाट विल हैपन व्हेन यू हैव अ टेम्परेचर एट 1200 डिग्री सेंटीग्रेड. मैंने बताया ना कि वी विल रीहीट द टेम्परेचर एट अराउंड 1200 डिग्री सेंटीग्रेड. तो आपको कौन सी फेज मिलेगी यहाँ पर? प्लीज समबडी टेल मी. अगर आपके पास कार्बन कंटेंट अप टू 2% है तो आप 0.8 कार्बन का बोल सकते हो, 0.72 बोल सकते हो. तो यू हैव अ कार्बन विद दैट मच, द स्टील विद दैट मच कार्बन. अब उसमें कौन सी फेज मिलेगी आपको? जो हमारा ये है बिलेट है, यू हैव हीटेड दैट, 1200 डिग्री पे आपने हीट किया. व्हाट इज द फेज प्रेजेंट इन दैट वन? क्या फेज है? डायग्राम में दिया हुआ है ना. Austenite. Austenite. Good. Yes, these sir. phases are given here. Okay, these all phases are given here. So austenite, what is austenite? Austenite is a supersaturated solution of carbon in iron. So यहाँ पर iron कार्बन में completely dissolved है. It is not in the precipitated form. It's completely dissolved in the austenite जो phase है, it's a supersaturated solution of carbon in alpha iron, carbon in iron, not alpha iron. So it's called gamma austenite. It's a gamma phase austenite. अब आप उसको जैसे ही कूल करोगे, आप इस टेम्परेचर पे आए तो आपको यहाँ पर क्या है? पूरा आपके पास ग्रेन्स है, गामा ग्रेन्स, मीन्स ऑस्टेनाइट के ग्रेन्स है. आप जैसे ही इसका टेम्परेचर इस पॉइंट पे लेके आओगे, ये एक डायग्राम है, E3 लाइन है. ओके, नाउ यहाँ पे जाते ही आपको एक फेज मिल रहा है. कौन सी फेज है यहाँ पर? इफ यू पीपल आर एबल टू सी, जूम इन करके, क्या फेज है वहां पर? Alpha plus delta. Gamma, sir. Austenite. Alpha iron. Yeah, so ferrite Alpha iron and austenite. Yes. So you are getting a ferrite and austenite. Means अभी ferrite जो iron है, it will start getting precipitated or it will start getting nucleated there. अब वो nucleation कहाँ पे हो रहा है? देखो आप, it will be nucleated at the grain boundaries. गामा की जो ग्रेन बाउंड्रीज है, सॉरी गामा की जो ग्रेन बाउंड्रीज है, वहां पर वो फेराइट बनना शुरू हो गया है. इसका मतलब
जो आगे बनने वाला है इट डिपेंड्स ऑन, क्योंकि वो ग्रेन बाउंड्रीज से निकलेगा, तो ऑस्टेनाइट की जो साइज रहेगी ना दैट विल डिफाइन योर दिस ऑल्सो द साइज ऑफ द परलाइट। अगर आप उसको बड़े बड़े ग्रेन्स बन जाएंगे गामा के, तो परलाइट के भी ग्रेन्स बड़े बन सकते हैं। यहाँ पर क्या हुआ, अल्फा प्लस गामा मिल गया, और जैसे उसको आप फर्दर कूल करोगे किसके नीचे, ये 727 के नीचे, कहीं कहीं पे 723 भी लिखा रहेगा, दैट A1। तो जब तक आप A1 टेम्परेचर के ऊपर हो, नाउ हियर फॉर 8.8% कार्बन और हियर 0.76% कार्बन, द A1 टेम्परेचर इज 727 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आप इसके नीचे जैसे ही जाओगे आपको क्या मिलना शुरू हो जाएगा, यू विल स्टार्ट गेटिंग अल्फा फेराइट एंड आयरन कार्बाइड। व्हाट यू विल गेट, आयरन कार्बाइड। यहां तक आयरन कार्बाइड नहीं है यहाँ इस वाले पोर्शन में। हाँ, इसके ऊपर जब जाओगे आप, यहाँ पर 0.8 के ऊपर या 0.76 इस डायग्राम में दिया हुआ है, हियर यू विल गेट अल्फा, ये है इस पॉइंट पे आपको Fe3C प्रिसिपिटेट होना शुरू हो जाएगा, तो इट विल बी गामा प्लस Fe3C हियर, एंड इस साइड में क्या है, गामा प्लस अल्फा। तो जो उसको बोलते हैं हाइपोइटेक्टोइड एंड हाइपरइटेक्टोइड। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड थिंग है, बस आपको इतना समझना है फॉर द टाइम बीइंग कि हमने जब बिलेट को हीट किया वी वेर गेटिंग वन फेज कॉल्ड ऑस्टेनाइट, और जैसे हम उसको कूल करेंगे फर्दर वी विल स्टार्ट गेटिंग डिफरेंट फेजेस डिपेंडिंग ऑन वो जो मटेरियल है वो क्या कार्बन का है। अगर इट्स कार्बन लोअर देन 0.76 और 0.8%, यूटेट्राइड स्टील नॉर्मली हम 0.8 लेके चलते हैं, तो if it is 0.8% carbon and low below, then you will get two phases, that will be perlite and ferrite। और अगर वो more than 0.76 है तो you will get perlite and cementite। cementite कहाँ पे आएगा, ग्रेन बाउंड्री पे रहेगा इसका, परलाइट तो बन गया और ग्रेन बाउंड्री पे प्रेसिपिटेशन चालू हो जाएगा सीमेंटाइट का। नाउ इट इज डिफरेंट देन टीटीटी डायग्राम। इसमें आपको ये नहीं पता चल रहा है कि आपका फाइन परलाइट है कि कोर्स परलाइट है, मार्टेंसाइट है, नो, दैट इज टोटली डिफरेंट। आयरन कार्बन डायग्राम में आपने उसको नॉर्मली कूल किया तो यू विल गेट दिस फेजेस। नाउ अगर आप ये जो टेम्परेचर है इस टेम्परेचर से आप क्या रेट पे कूल करते हो, यू कैन गेट डिफरेंट फेजेस ऑल्सो, that will be depending on the cooling rate, and that phases are perlite, martensite and bainite, तीन ही फेज मिलती है। तो आयरन कार्बन डायग्राम में आपको जस्ट इमेजिन कीजिए कि द बिलेट व्हाट वी हैव हीटेड, वी गॉट द ऑस्टेनाइट, और अभी उसको जब हम कूल कर रहे हैं तो उसका फेज ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा, है ना। दैट इज हाउ दैट कूलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। Sir, हाँ, sir, if we reduce the percentage of carbon and if the temperature is below 727 degrees Celsius, then we get perlite plus cementite. So it is equivalent to perlite. परलाइट तो परलाइट ही है ना, द सीमेंटाइट विल बी एट द ग्रेन बाउंड्री, परलाइट तो है ही वहां पर। Okay, sir. बिकॉज हियर द कार्बन इज मोर, तो एक तो क्या होगा, परलाइट के लिए जितना लगना है आयरन कार्बाइड, ठीक है, एंड परलाइट वो जितना बनना है बन जाता है, बाकी जो है इट विल प्रिसिपिटेट ऑन द ग्रेन बाउंड्रीज। सो आयरन कार्बाइड विल प्रिसिपिटेट ऑन द ग्रेन बाउंड्रीज, दैट्स व्हाई द यूटीएस जो होता है ना आपका हायर होता है हायर कार्बन में, बिकॉज ऑफ द Yes, sir. सीमेंटाइट जो हमारा ग्रेन बाउंड्री पे जाता है इट विल स्टॉप द डिसलोकेशंस फॉर मूविंग। डिसलोकेशंस जो होती है ड्यूरिंग द कोल्ड वर्किंग ऑपरेशन और एनी काइंड ऑफ ऑपरेशन, तो डिसलोकेशंस को मूव नहीं करने देता है दैट हार्ड फेज सीमेंटाइट, करके उसका आपको स्ट्रेंथ ज्यादा मिलता है, बिकॉज सीमेंटाइट इज अ हार्ड फेज
एंड आप जैसे जैसे नीचे वाले कार्बन में जाते हो 0.76 के नीचे, सो यू विल गेट फेराइट एट द ग्रेन बाउंड्री. परलाइट तो रहेगा ही रहेगा, बट यू विल हैव फेराइट ऑल्सो. सो फेराइट इज अ softer phase, so that's why the UTS will be lower with the lower carbon. Yeah. So in between 1% of carbon and 2% of carbon, so it is written that we will get parallel and symmetric. So Yes, my question was that is it equivalent to ferrite? Because you have written that ferrite is below 27 degrees Celsius and about 2%. नहीं, sorry, below 2%. हाँ, तो फेराइट नहीं आएगा ना. It is not equivalent to anything. It is perlite, एक phase है, and cementite will be at the grain boundary. Cementite is basically iron carbide, Fe3C. It is called iron carbide. So you will in that particular structure at the grain boundary. ये देखो ना, यहाँ से इस साइड में देखिए आप, इस पॉइंट पे जब आए हम, so you go to this diagram, or even before that go to this diagram. So ग्रेन बाउंड्री पे देखो क्या चालू हो गया है, आयरन कार्बाइड न्यूक्लिएशन शुरू हो गया है ना. एंड यहाँ पे देखो ये पूरा आयरन कार्बाइड यहाँ पर ग्रेन बाउंड्री पे है, दिख रहा है आपको, यहाँ पर ग्रेन बाउंड्री पे आयरन कार्बाइड है. सो इनसाइड द ग्रेन, ये जो ग्रेन बना है ना यहाँ पर, जैसे 1 2 3 4 ग्रेन्स यू कैन सी हियर. इनसाइड द ग्रेन इट्स द परलाइट, बिकॉज आयरन कार्बाइड अल्फा फेराइट, आयरन कार्बाइड अल्फा फेराइट है. ओके, एंड ग्रेन बाउंड्री पे यहाँ पर क्या है, आयरन कार्बाइड है. वही आप अगर यहाँ पर जाओगे, सो यू विल सी ग्रेन बाउंड्री पे क्या है, फेराइट है. दिस इज अ ग्रेन बाउंड्री, ये फेराइट है ग्रेन बाउंड्री पे. एंड इनसाइड द ग्रेन मींस द ग्रेन इज कंपोज ऑफ परलाइट, दैट इज आयरन कार्बाइड एंड फेराइट. सो हाइपोयूटेक्टॉइड में आपको ग्रेन बाउंड्री पे क्या मिलेगा, फेराइट, एंड हाइपर यूटेक्टॉइड में आपको ग्रेन बाउंड्री पे मिलेगा सीमेंटाइट, that is iron carbide Fe3C. Cementite is Fe3C. ये समझने में आपको थोड़ा टाइम लगेगा, है ना. दो अगर आपने पहले कभी देखा है, पढ़ा है तो अलग बात है, बट इट विल टेक मोर टाइम, जो हम पैटेंटिंग में डेफिनेटली कवर करेंगे. क्योंकि इसके लिए पर्टिकुलर एक दिन जो रहेगा ना, एक दिन टोटली सिर्फ आयरन कार्बाइड डायग्राम और टीटीडी डायग्राम में जाने वाला है अपना. पैटेंटिंग के क्लास में ऑलमोस्ट 2 days विल बी ऑन द स्ट्रक्चर ओनली. ओके, है ना. तो जस्ट आपको समझाने के लिए फॉर द, क्योंकि वायर रॉड में भी कूलिंग की साइकिल्स है, तो जस्ट अंडरस्टैंड व्हाई योर टेम्परेचर इज हाई 1200 डिग्री सेंटीग्रेड, बिकॉज यू नीड टू हैव द ऑस्टेनाइट. कोई भी स्ट्रक्चर मिलाने के लिए, आप ये करने के लिए, यू हैव टू गो टू दी ऑस्टेनाइटाइजिंग टेम्परेचर, एंड देन यू कूल एट वेरियस डिग्री ऑफ कूलिंग रेट, you will get different product. Normal just cool करते हैं, you will get only this one, but TTT diagram जो होती है, that is basically for the knowing what all kind of structure you can get at various temperature, various cooling rates. So this is a time temperature transformation diagram. तो इसको भी हम डिटेल में पढ़ेंगे. राइट नाउ आपको इतना याद रखना है कि जो स्लो कूलिंग रेट था हमारा यहाँ से, तो वी विल गेट कोर्स परलाइट. अगर कूलिंग रेट इज समवॉट फास्टर, यू विल गेट फाइन परलाइट. बहुत ही ज्यादा फास्ट करेंगे मीन्स नीचे लाके अगर हमने इस एरिया में गए, तो यू विल गेट बेनाइट. बेनाइट में भी 2 टाइप है, एंड जैसे वाटर क्विंचिंग या ऑयल क्विंचिंग करते हैं, तो यू विल अवॉइड एनी ऑफ दिस कर्व एंड यू विल डायरेक्टली गो टू दी मार्टेनसाइट. तो जो हार्ड रहता है ना, HRC 60 62, जो हार्डन मटेरियल जो रहता है, you people must have heard about the hardening. Hardened material is basically having a phase called martensite, which is very hard, and that will be achieved by cooling the material from the austenitizing temperature, cooling the material at a very high rate. तो जो गियर्स है, कार्बोनाइजेशन के बाद उसको हार्डनिंग हीट ट्रीटमेंट दिया जाता है, या कोई जो वेयर रेजिस्टेंट पार्ट बनाना है आपको, उसको हार्डनिंग किया जाता है. डाइज मींस नॉट टंगस्टन कार्बाइड डाइज, नॉर्मल कोई डाई मटेरियल है हार्डन,
it will be having the martensitic phase. Either it can be the hardness can be increased by way of some kind of coating or by carburizing and hardening. कार्बन परसेंटेज बढ़ा दो एंड उसको हायर कूलिंग रेट पे कूल कर दो, यू विल गेट अ मार्टेंसिटिक फेज विच इज वेरी हार्ड. तो अभी ज्यादा आप इसमें डोंट गेट इन्वॉल्व, जस्ट थिंक कि हाँ हमारे पास ऑस्टेनेट था, ऑस्टेनेट से हमने कूल किया, अगर हम एयर कूल फास्टर करेंगे यू विल गेट फाइन परलाइटिक स्ट्रक्चर, है ना. एंड परलाइट इज नथिंग बट अ इंटरलैमिनर स्ट्रक्चर ऑफ अल्फा फेराइट एंड आयरन कार्बाइड. इतना आप याद रखो अभी, ठीक है. सर मेरा एक डाउट था. हाँ पूछो. सर ये जो ऑस्टेनाइट से हम मतलब परलाइट मतलब और सीमेंटाइट में गए, तो वापिस अगर हीटिंग करेंगे हम लोग मतलब 1200 से 700 डिग्री, वापस सेम स्ट्रक्चर रिगेन हो जाएगा? बिल्कुल. आप दैट इज द थिंग ना, जैसे वायर रॉड आपके पास आया, वायर रॉड में क्या है, वायर रॉड यू आर हैविंग अ परलाइट एट द रूम टेम्परेचर. आप उसको ड्रॉ कर रहे हो और जब जैसे आप फर्नेस में लेके जाते हो उसको, पैटेंटिंग फर्नेस में क्या होता है, यू आर अगेन गोइंग टू दी 990 या 1020 डिग्री सेंटीग्रेड. एक्चुअल जो लिविंग टेम्परेचर रहता है अराउंड 920 940 रहता है. सो अगेन यू आर गोइंग टू दैट फेज. इवन आप जैसे मार्टेनसाइट भी आप बनाते हो ना, मार्टेनसाइट भी अगर आपके पास है हायर कूलिंग रेट करके, हार्डन मटेरियल है, वेरी हार्ड मटेरियल, HRC 6062 का मटेरियल है समझो, आप उसको हिट कर दो अबव दिस टेम्परेचर, है ना, अबव द दैट A3 लाइन. तो थियोरेटिकल से ऊपर ही करना पड़ता है फॉर थ्रू द क्रॉस सेक्शन टेम्परेचर अचीवमेंट. तो जो हार्डनेस है टोटली चली जाएगी उसकी, इफ दैट हार्डनेस इज बिकॉज ऑफ द मार्टेनसाइट फेज. तो हम जैसे उसको आप हीट करोगे ना तो ऑस्टेनेट बन जाएगा, एंड अगेन नॉर्मल कूल करोगे तो आपको परलाइट मिलेगा. ओके ठीक है. अगर नॉर्मल कूल करोगे तो आप फास्टर कूल करोगे अगेन उसी को, मार्टेनसाइट आपके पास फेज है, हार्डन गियर मटेरियल जो है ना आपके पास हार्डन गियर है समझो. व्हाट यू हैव डन, यू हैव इंक्रीज द टेम्परेचर अगेन बैक. तो ऊपर जाने के बाद तो उसमें पूरा ऑस्टेनेट आ गया अभी. बट अगर आप उसको अगेन कूल करोगे ऑयल क्वेंच में या समथिंग, तो अगेन उसके अंदर मार्टेनसिटिक फेज मिलेगा आपको और आपको सेम प्रॉपर्टी आ जाएगी. थोड़ा डिस्टॉर्शन होगा प्रॉपर्टीज में, बट अगेन यू विल हैव द हार्डनेस बिकॉज ऑफ दैट कूलिंग रेट. बट अगर आपने गियर को ऑस्टेनेट में फेज में लेके गए, उसको गर्म किया एंड उसको एयर में रख दिया ठंडा होने के लिए आराम से, तो आपका वो HRC 6062 चला गया. यू विल हैव परलाइट प्लस सीमेंटाइट डिपेंडिंग ऑन द कार्बन अगेन. बट वो आपका फिर HRC 6062 नहीं मिलेगा बिकॉज दैट इफेक्ट हैज गॉन. ओके क्लियर है कि नहीं? क्लियर है सर, क्लियर. इट्स डिपेंड अपॉन लाइक कौन सा कूलिंग प्रोसेस आप यूज कर रहे हो. हाँ, स्ट्रक्चर जो मिलेगा फाइनल इट विल डिपेंड ऑन कार्बन एंड दी कूलिंग रेट. ओके कार्बन पे डिपेंड करेगा डेफिनेटली, क्योंकि अगर आपके पास ये आयरन कार्बन डायग्राम इसीलिए तो है. सो अगर हमारे पास कार्बन कम है, ठीक है ना, तो अगर हमारे पास कार्बन कम है, द फेजेस व्हाट वी गेट विल बी परलाइट प्लस फेराइट. तो फेराइट विल बी एट द ग्रेन बाउंड्री अगर नॉर्मल कूल करते हैं तो, एंड फास्टर कूल करते हैं तो अलग अलग फेज जो है ये मिलेगी यहाँ पे. ओके ठीक है, गॉट इट. अपन इसमें करेंगे पैटर्निंग में, वी विल टोटली डेडिकेट ऑलमोस्ट 2 days टू ऑन दिस टॉपिक, क्योंकि थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी है एंड आई वांट टू फोकस दिस ऑन, क्योंकि पैटेंटिंग इज कॉल्ड द हार्ट ऑफ वायर ड्राइंग. अगर पैटेंटेड मटेरियल आपका अच्छा है, वायर ड्राइंग में कोई इश्यू नहीं आना चाहिए. एंड इवन फिनिश प्रोडक्ट में, द फिनिश प्रोडक्ट की जो प्रॉपर्टीज होती है चालू होती है पैटेंटिंग मटेरियल से. डेफिनेटली वायर ड्राइंग में अगर कुछ वेरिएशन कर दोगे, कम पास में मटेरियल बन जाएगा, हाई टेम्परेचर पे हाई स्पीड में चला देंगे, कूलिंग प्रॉपर नहीं रहेगा, डाई ड्राफ्टिंग प्रॉपर नहीं रहेगा, तो डेफिनेटली अगर अच्छा पैटेंटिंग मटेरियल रहेगा उसको भी खराब कर देंगे. बट अगर पैटेंटिंग मटेरियल अच्छा है, वायर ड्राइंग प्रोसेस अच्छा है, तो आपका फिनिश प्रोडक्ट अच्छा होना ही होना है. वन मोर नाउ, वायर रॉड में जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है आपको क्या लुक आफ्टर करना है, जस्ट 5 minutes वी विल क्लोज. टुडे वी हैव एक्सटेंडेड लिटिल बिट. सो जो इम्पोर्टेंट है,
केमिकल कंपोजिशन। तो आप लोगों के लिए एक टास्क है अभी दिवाली में, प्लीज गो थ्रू द केमिकल द सप्लाई टीसीज, द वायर रॉड सप्लायर जो आपके यहाँ पे सप्लाई करते हैं, एटलीस्ट 3-4 जो भी सप्लायर होंगे उनकी टीसीज देखिए अलग अलग प्रोडक्ट की, एंड प्लीज एनालाइज दैट वन। जेरोक्स कॉपी निकाल लीजिए, उसका फोटो निकाल लीजिए कंपनी में जो मिलता है आपको, बिकॉज ऐसा कुछ उसमें प्रोप्राइटरी नेचर का कुछ रहता नहीं है, इंटरनेट पे डालोगे तो वहां पे 10 मिल जाएंगी टीसीज। सो आपको क्या करना है, वो टीसी को एक बार एनालाइज कीजिए कि टीसी में क्या क्या लिख के देता है ना, उसमें देखना आप ग्रेन साइज भी लिखा रहेगा, टेंसाइल स्ट्रेंथ लिखा रहेगा, केमिकल कंपोजिशन रहेगा। केमिकल कंपोजिशन में आपको देखना है क्या क्या मटेरियल है। हमने तो 5 ही मटेरियल 6 मटेरियल के बारे में बात की, व्हाट एल्स इज देयर, ऑक्सीजन कंटेंट कितना मेंशन करता है, नाइट्रोजन कितना मेंशन करता है, और नहीं है तो आप पूछ सकते हो थ्रू परचेज थ्रू क्वालिटी कंट्रोल की इसमें नाइट्रोजन कंटेंट कितना है, इसमें ऑक्सीजन कंटेंट कितना है, वो तो मेंशन ही नहीं किया है, तो पूछ सकते हो आप उनको, ठीक है। एंड टेंसाइल स्ट्रेंथ आपको देखना है कि वो टेंसाइल स्ट्रेंथ कितनी है, और आप एक अपना एक थंब रूल भी बना सकते हो। अगर आप टीसी देखोगे ना, राइट फ्रॉम फॉर एग्जांपल 60 कार्बन, 61 65 66 70 71 75 77 75 80 एंड 81 85, ये 5 अलग अलग ग्रेड की अगर टीसी देखोगे, एंड इफ यू calculate around average tensile strength, you will come to know how much should be added to the carbon content to arrive at a theoretical UTS of the wire rod. तो अगर आपके पास 71 कार्बन है तो आप देखोगे अराउंड 35 ऐड करते हो तो आपको UTS मिल जाएगा, बट यू पीपल शुड डू दैट वन। तो ये भी आपके लिए एक टास्क है। दोज पीपल हु कैन कंप्लीट प्लीज शेयर इट वंस वी रिगेन द ट्रेनिंग सेशन आफ्टर दिवाली ब्रेक। रिडक्शन एरिया इज इम्पोर्टेंट, क्योंकि हमको ड्रॉ करना है, वायर रॉड को ड्रॉ कर कितना कर पाएंगे दैट विल डिपेंड ऑन द रिडक्शन एरिया। अगर वो रिडक्शन एरिया कुछ भी नहीं है, इसका मतलब द मटेरियल इज नॉट डक्टाइल। तो रिडक्शन एरिया इज बेसिकली अ चेकिंग, प्रॉपर्टी चेकिंग ऑफ डक्टिलिटी, एंड डेफिनेटली द स्ट्रक्चर विल बी वेरी इंपॉर्टेंट। तो क्वालिटी लैब में जाइए, स्ट्रक्चर अगर इफ यू आर अलाउड, इफ यू आर परमिटेड, गो एंड लुक एट द स्ट्रक्चर। 1200 के मैग्निफिकेशन पे आप देखोगे ना, तो वायर रॉड में जो मैंने आपको बताया आज, वो स्ट्रक्चर आपको दिखने लगेगा 1200 पे भी, एटलीस्ट लैमिलाज यू कैन सी, और फिर आपको ग्रेन बाउंड्रीज पे कुछ व्हाइट कलर का दिखना शुरू हो जाएगा। तो वो स्ट्रक्चर आप देखिए। सो दीज आर द एक्टिविटीज यू कैन डू ड्यूरिंग द दिवाली ब्रेक। एक कार्बन इक्विवेलेंट करके फिनोमिनन है, that we will continue in the next this one training session. Otherwise इसको और टाइम लगेगा, because we already extended today. अगर आज की इसमें किसी को कुछ डाउट है तो you people can ask. Those who have joined late, I just want to tell from tomorrow till 19th, we have decided till 19th there will be no training session, 18th basically. Just a minute. So we will, today is 12 na, so on 13th 14th 15th 16th and 17th 5 days there will be no lecture. 18th I will try to connect na, so on 18th you will get the notification for the link for attending the training session. As I am traveling to my hometown, it may not be possible or will be possible depending on the internet connectivity there. तो अगर पॉसिबल होता है वेल एंड गुड, अदरवाइज जो भी रिवाइज टाइमिंग रहेगा, रिवाइज शेड्यूल रहेगा, आई विल इन्फॉर्म यू। बट 18th बी रेडी टू अटेंड दैट वन। अगर 18th को किसी को कुछ इश्यू है तो लेट अस स्पीक टुडे। अगर आपको लगता है 18th को नहीं 19th से चालू करना है तो वी कैन डिस्कस नाउ, अदरवाइज 18th को हम वी विल हैव द सेशन, ठीक है। So this is regarding the this one break, Diwali break. I will be also uploading the quiz on whatever we have learned in this wire rod manufacturing session so far. Okay, तो जो फर्स्ट क्विज था उसके आप प्लीज जो भी अटेम्प्ट किया आपने उसके स्क्रीनशॉट भेज दीजिए, एंड सेकेंडली the another quiz I am going to upload that one. Once it is uploaded I will send you the message that yes it is uploaded. अभी आज के सेशन का कोई अगर डाउट है तो प्लीज आस्क, एल्स वी विल क्लोज द सेशन।
So before we close, happy Diwali to all of you. Stay safe, stay happy, enjoy the Diwali break. ठीक है? अगर कोई डाउट है तो हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली मंडल जी। हैप्पी दिवाली सर। हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली सर। दिवाली की शुभकामनाएं। राजूरकर जी, दिवाली की शुभकामनाएं। हैप्पी दिवाली सर। हैप्पी दिवाली। So let us enjoy safe and sound Diwali and meet on 18th again. Okay? So अगर बीच में कुछ डाउट रहा तो you definitely can call me. Both of my numbers will be reachable. So you people can contact me if there is any doubt. ठीक है?